सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका नीट मेंटर फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली एक बार फिर से। और आज अपन स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का पार्ट 2, जो कि आपको पता ही है फुल एनसीईआरटी रहने वाला है। एंड एनसीईआरटी का वो हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां से अपना नीट के लिए क्वेश्चन पिक आउट हो सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रॉम पार्ट 2 कि म्यूकोसल लेयर ऑफ द स्टमक फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स नोन एज रूगी। ओके, so जो mucosal layer of the stomach है that form irregular folds so that are known as rugi. Then mucosal layer of the intestine form small finger-like folding. They are known as villi. Okay, mucosal layer of stomach है and then next क्या mucosal layer of intestine याद रखिए. Next one, cell lining the villi. Okay, produce numerous microscopic projections. They are known as microvilli, which gives brush border appearance, okay, and ultimately increase the surface area. Okay, next यहाँ से अपना क्वेश्चन पिक आउट हो सकता है. Villi are supplied through the network of capillaries and a lymph vessel which is known as lacteal. Okay, next, mucosal epithelium has goblet cell. Okay, and goblet cell secrete mucus or mucus work as lubricant. And then mucosal layer of the stomach form gastric glands. Okay, and then mucosal layer of intestine form crypts of the liver cohen, okay, between the base of the villi. Then digestive glands क्या है? Digestive glands according to NCERT 3 है क्या? Salivary gland, liver and pancreas. Okay, salivary gland, liver and pancreas. Next, saliva mainly produced by the three pair of the salivary glands. क्या? Parotid gland, submaxillary submandibular gland और sublingual gland. Okay, एक म्यूकस सिक्रेट करता है, एक एंजाइम सिक्रेट करता है एंड एक बोथ एंजाइम एंड म्यूकस दोनों सिक्रेट करता है. ओके, नेक्स्ट, salivary gland present just outside the buccal cavity, okay, and secrete salivary juice into the buccal cavity. Okay, next, hepatic lobules, the important part है. Hepatic lobules are the structural and the functional unit of the liver, okay, containing hepatic cells in the form of cords. Next, लीवर के रिगार्डिंग कितने पॉइंट्स है जहां से अपना क्वेश्चन पिक आउट होगा कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड हैविंग 2 lobes. देन लीवर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम. एंड देन लीवर का वेट कितना होता है 1.2 to 1.5 किलोग्राम. ओके, देन इन लीवर each lobule is covered by the thin connective tissue sheath known as Gleason capsule. Okay, then bile secreted through the hepatic cell, okay, and passes through the hepatic duct and then stored and concentrated in a thin muscular sac which is known as gallbladder. Then duct of the gallbladder known as cystic duct. ये NCERT में नहीं है पर important है. Duct of the gallbladder known as cystic duct. Then cystic duct plus hepatic duct form bile duct और common bile duct. ये याद रखिएगा, ये जो बाइल डक्ट है और कॉमन बाइल डक्ट है दोनों एक ही है. ओके, नेक्स्ट, बाइल डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट along with the pancreatic duct form the hepatopancreatic duct, okay, which opens into the duodenum, okay, and it is guarded by the sphincter of the Oddi. Then pancreas के रिगार्डिंग कितने पॉइंट्स हैं कि pancreas present between the limbs of C-shaped duodenum. ओके, यहाँ से एक ट्रिक हो सकता है कि ये जो C-shaped duodenum है इसे J-shape कर दिया जाए कुछ भी, तो मतलब यहाँ पे अपना क्वेश्चन का जो कि चेंज में ट्रिक हो सकता है. तो ये याद रखिएगा कि C-shape. ओके, सो पैनक्रियास कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द लिम्स ऑफ द C-shaped duodenum. देन पैनक्रियाटिक जो कि एक मिक्स ग्लैंड है, सो इसमें बहुत एक्सो एंड एंडोक्राइन पार्ट रहेगा. तो पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या सीक्रेट करता है? एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम. एंड एंडोक्राइन पार्ट सीक्रेट हार्मोन्स, क्या इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ओके, सो एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम सीक्रेट करता है एंड एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सीक्रेट करते हैं, क्या इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ओके, देन नेक्स्ट, बक्कल कैविटी.
तो बक्कल कैविटी किसमें हेल्प करता है? बक्कल कैविटी हेल्प इन mastication of food, okay, and mastication means चबाना, okay, and then facilitation of swallowing, okay. तो बक्कल कैविटी हेल्प इन mastication of food and facilitation of swallowing. swallowing मतलब निगलना. So बक्कल कैविटी हेल्प इन चबाना एंड निगलना. देन swallowing और डिग्लूटेशन किसे बोला जाता है? जब फूड बोलस मूव्स फ्रॉम फेरिंक्स टू द इसोफेगस, ओके. जी, तो फूड को अपन निगलते हैं कैसे? ये फेरिंक्स टू इसोफेगस जाता है. So that is swallowing or deglutition. Then peristalsis. Peristalsis क्या? Peristalsis is the successive wave of muscular contraction. कहाँ पे होता है? In esophageal layers. Then gastroesophageal sphincter control the passage of the food into the stomach. Okay, ये पहले भी आया. Next, saliva. तो saliva में क्या क्या है? सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स, ओके. तो सलाइवा में क्या क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स. तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट. एंड एंजाइम्स, सलाइवा में दो टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं. क्या क्या? सैलिवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ओके. देन नेक्स्ट, डाइजेशन इनिशिएटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी by the hydrolytic activity of the carbohydrate splitting enzyme salivary amylase, okay. ये salivary amylase जो saliva में पाया जाता है enzymes that initiate the digestion, okay, in the oral cavity by the hydrolytic activity. Then up to 30% starch hydrolyzed in the oral cavity by the salivary amylase, okay. salivary amylase क्या करता है? स्टार्च को maltose में कन्वर्ट करता है, ओके. एंड इसका pH होता है 6.8. देन गैस्ट्रिक ग्लैंड. सो गैस्ट्रिक ग्लैंड के क्या है? सॉरी, गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं. क्या क्या? म्यूकोसल नेक सेल, पैराइटल सेल और चिप सेल एंड पेप्टिक सेल और पेप्टिक सेल एंड चिप सेल एंड पैराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल. सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल. क्या क्या? म्यूकोसल नेक सेल, पेप्टिक सेल और चिप सेल एंड पैराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल. एंड देन ये अब क्या क्या सिक्रीट करता है? सो म्यूकोसल नेक सेल है तो म्यूकस सिक्रीट करेगा, सिक्रीट म्यूकस. एंड पेप्टिक सेल एंड चिप सेल सिक्रेट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, ओके. एंड देन पैराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल सिक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. सो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या था? इंट्रिंसिक फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द विटामिन B12. देन स्टमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 hours, ओके. स्टमक में फूड 4 to 5 hours के लिए स्टोर रहता है. देन पेप्सिन. पेप्सिन क्या है? पेप्सिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, ओके. एंड ये जो पेप्सिन है पेप्सिनोजन से बनता है. कैसे बनता है अब देखते हैं. सो अब क्या है? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट. सो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट क्या? दे आर वर्क एज लुब्रिकेंट एंड प्रोटेक्ट द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम द HCl और फ्रॉम एसिडिक कंडीशन. देन in stomach HCl provide pH, acidic pH which is 1.8 for pepsin formation, okay, from the pepsinogen, okay. तो ये जो पेप्टिक सेल और चिप सेल है that secrete proenzyme pepsinogen, okay, and ये जो pepsinogen है that is convert into the active form pepsin through the acidic pH that is provided by the HCl, okay. then ये था अपना सेकंड पार्ट. सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ. एंड ये गारंटेड है, मतलब पूरा कंफर्म है कि हर एक पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है फुल NCERT को खोद के निकाला है. तो अगर ये सब पॉइंट आप कर लेते हैं तो NCERT पूरा कवर्ड हो जाएगा, ओके. एंड मोस्टली जो क्वेश्चन नीट के लिए है यहीं से पिक होता है एंड आपका पूरा NCERT भी साथ कवर हो जाएगा. सो जस्ट